Imagine starting a business with your best friend. You put in a cash, they do the work, and at the end of the year, you are making thousands of profit. Sounds great, right? Until one of you walks away with all the cash because you did not know how to handle a partnership account. If you want to stop losing easy marks in Cambridge O level 7707 and IGCSE 0452 accounting, you need to master partnerships. I am Tala Fuzel and I will be teaching you partnership accounting from 5.2 partnership O level 7707 syllabus. From the syllabus, we can see that first topic is how a partnership can be a trading, service, manufacturing business or combination of these. The advantages and disadvantages of forming a partnership, importance and the content of a partnership agreement, the purpose of an appropriation account. So here appropriation account is a new thing in the partnership accounting. We have seen the statement of profit and loss account from the sole trader as well as a statement of financial position. So what is the difference between these between sole trader and partnership account? तो इंशाल्लाह इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे. Similarly, how to record interest on partner loan, interest on capital, interest on drawing, partnership salary, and division of the profit, balance of profit or loss. Then we have already seen how to make adjustment to the financial statement in sole trader. So in CIs, we will encounter a question जिसमें adjustments भी होंगी और partnership भी होगी. Similarly, the difference between partners capital and current accounts. How to prepare partners capital and current account in ledger account and parts of a statement of financial position. So this video will be having two parts. In the part 1 we will be covering theoretical part of the partnership, and in the next video we will be solving a past paper question. So starting from statement of profit or loss. Obviously this is a new name of income statement. So those who are not aware of this term, always remember this is the requirement now कि we have to use the term statement of profit and loss account instead of income statement. So what is the difference between the sole trader and the partnership accounting? जब हम statement of financial statement of profit and loss बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? हम sales, right now I'm talking about the trading business. तो हम sales में से डिडक्ट करते हैं cost of sales. ठीक है. By the term sales I mean sales less sales return if there is a return available. तो हमारे पास आ जाती है नेट सेल्स. तो हम नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिडक्ट करते हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? हमारे सबसे पहले इन्वेंट्री एट स्टार्ट. अगेन ओपनिंग इन्वेंट्री जगह हम वर्ड यूज़ करेंगे इन्वेंट्री एट स्टार्ट. इसमें हम परचेजेस को ऐड कर देते हैं, क्वाइट ऑब्वियस. और इफ देयर इज एनी ड्राइंग ऑफ गुड्स तो वो डिडक्ट करने के बाद हम इसमें से परचेज रिटर्न को भी डिडक्ट कर लेते हैं. देन वी ऐड कैरेज इनवर्ड्स. ठीक है. तो ये करने के बाद फिर हम इसमें से लेस करते हैं इन्वेंट्री एट एंड. तो ये वर्किंग के बाद हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है. जब हम सेल्स या नेट सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को डिडक्ट करते हैं तो वी अराइव एट ग्रॉस प्रॉफिट. देन अगेन, unlike all other
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ऑल अदर बाय वर्ड ऑल अदर आई मीन कि अगर हम सोल ट्रेडर बना रहे हैं या पार्टनरशिप बना रहे हैं तो देयर इज नो डिफरेंस। हम क्या करते हैं इसमें अदर इनकम ऐड करते हैं। अदर इनकम कुड बी एनी इनकम, लेट्स से इधर जो है हमारे पास डिस्काउंट रिसीव हो सकता है, इधर हमारे पास गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ नॉन करंट एसेट हो सकता है, इधर हमारे पास डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हो सकते हैं, और एनी इनकम रिसीव हो सकती है। लेट से हमारे पास रेंटल रिसीव रेंट रिसीव हो सकता है, कमीशन रिसीव हो सकता है, इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है। बट रिमेंबर देयर विल बी नो ट्रेड रिसीवेबल हेयर। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ बिगनर्स कमिट दिस मिस्टेक कि वो समझते हैं कि सारे रिसीवेबल आ रहे हैं तो व्हाई नॉट ट्रेड रिसीवेबल। ऑलवेज रिमेंबर ट्रेड रिसीवेबल इज आवर करंट एसेट। सो आफ्टर adding other income, then we deduct less expenses, and after doing so जो भी हमारे expenses हैं we arrive at the value profit for the year. Now when we talk about this statement, so this statement is same यहाँ तक चाहे हमारे sole trader हो या हमारी partnership हो, they are exactly the same. Now what is the difference then? अगर ये सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है, तो डिफरेंस कहाँ है? डिफरेंस केम हियर एट द appropriation account. Now sometimes obviously I don't think so कि ये कभी वो थ्योरी हमसे पूछेगा कि appropriation account क्या होता है, बट फॉर आवर सेक वी मस्ट नो कि हमारा बेसिकली एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है और हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते क्यों हैं। सो एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज बेसिकली द डिवीजन ऑफ प्रॉफिट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब बेसिकली इट shows how a partnership profit or loss is distributed or allocated among partners। अगर दो से ज़्यादा पार्टनर्स हैं तो ऑब्वियसली हम लिखेंगे अमंग पार्टनर्स, और अगर दो हैं तो हम लिखेंगे बिटवीन पार्टनर्स। सो इसकी बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं? सबसे पहले इसके अंदर आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर ऑब्वियसली, ठीक है। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर जो हमने यहां पे निकाला था, ये स्टोरी यहां से बिगिन होगी, ठीक है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट जो कि समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एट दिस स्टेज, कि हमारी जो अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये बिजनेस के पर्सपेक्टिव से तैयार होती है, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिजनेस पर्सपेक्टिव? चलो अभी हम फॉर्मेट बना लेते हैं, इंशाल्लाह उसके साथ साथ ये मैं समझाता हूँ कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से हमारा क्या मतलब है। वी विल क्रिएट टू लाइन्स। तो स्टार्टिंग फ्रॉम प्रॉफिट फॉर द ईयर विच इज कैलकुलेटेड, यहां पे हमने कैलकुलेट किया था जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाते हैं, फॉर्मली नोन एज इनकम स्टेटमेंट।
सो प्रॉफिट फॉर द ईयर में हम ऐड ऑन करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो अभी हम पहले फॉर्मेट बना लेंगे, देन वी विल डिस्कस कि इनकम और ड्राइंग क्या चीज़ है, इधर क्यों आई। ठीक है, लेट से हमारे पास दो पार्टनर हैं ए एंड बी। तो व्हाट वी विल डू कि जो ड्राइंग ऑफ ए होगी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी परसेंटेज सेट की गई होगी। लेट सपोज मैंने 5% अज्यूम कर लिया, ड्राइंग ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय 5%। ठीक है, तो वी विल अराइव एट अ फिगर, इसको हम यहां लिखेंगे, देन वी विल ऐड दीज टू फिगर्स और ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी, इसको हम ऐड करके ये एक वैल्यू निकाल लेंगे। आफ्टर दैट लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है बेसिकली अगेन हमारे पास दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी, जो भी इनका कैपिटल स्ट्रक्चर होगा इस कैपिटल में मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज, जो भी गिवन परसेंटेज होगी अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, वो हम यहां पे ऐड करेंगे और इस दोनों वैल्यूज को हम इस वाली वैल्यू से डिडक्ट कर देंगे। देन वी विल अराइव टू अ न्यू वैल्यू और देन इसमें से हम लेस कर देंगे सैलरीज ऑफ partners. Now, again, salaries of partners will be if there is an agreement, तो एग्रीमेंट में वो ऊपर हमें मेंशन की भी होगी या एडजस्टमेंट में हमें मेंशन की भी होगी। लेट सपोज ए और बी दोनों को सैलरीज मिल रही हैं, ऑलवेज रिमेंबर सैलरीज मस्ट बी ईयरली। अगर उन्होंने मंथली दी हुई है तो मल्टीप्लाई बाय 12 होगी और अगर उन्होंने क्वार्टरली दी हुई है तो मल्टीप्लाई बाय हम 4 करेंगे। ठीक है, दोनों की हमारी ईयरली सैलरी होनी चाहिए। ये हम अगर दो पार्टनर्स की सैलरी तो दोनों की लिखेंगे, एक की सैलरी हम एक की लिखेंगे। इट माइट बी पॉसिबल कि किसी क्वेश्चन में सैलरी ना गिवन हो, तो अगर सैलरी नहीं गिवन होगी तो ऑब्वियसली वी विल नॉट राइट द सैलरी। नाउ वी अराइव टू दिस वैल्यू। नाउ दिस वैल्यू इज नोन एज रेसिडुअल प्रॉफिट। Residual profit is the leftover profit after deducting interest on capital as well as interest on salaries of partners. इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे क्लोज कर देंगे इस वैल्यू को, और अब हम क्या करेंगे, पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट या प्रॉफिट टू बी शेयर्ड की हम हेडिंग डालेंगे। अब पार्टनर ए पार्टनर बी आ गए। नाउ ये जो शेयरिंग है ये इक्वल शेयरिंग है तो हम 50% 50% कर देंगे। इफ देयर इज सर्टेन परसेंटेज तो हम लिखेंगे प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय जो भी परसेंटेज होगी, इसको भी इसकी परसेंटेज दे देंगे, प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। समटाइम्स इन रेशियोज गिवन होगा तो हम क्या लिखेंगे, जो रेशियो ऑफ ए होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे टोटल रेशियो से मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। ठीक है, लेट सपोज कि अगर 2:3 का रेशियो है तो हम क्या करेंगे, हम ए को किस तरह देंगे, हम लिखेंगे 2/5। 5 कैसे आया, 2+3 करके, मल्टीप्लाई बाय जो भी प्रॉफिट होगा। सिमिलरली बी को कैसे देंगे, बी में हम लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट जो भी होगा। ठीक है, तो ये जो दो वैल्यूज आ गई, ये वैल्यू हम यहां लिखेंगे एंड डेफिनेटली दिस वैल्यू विल बी इक्विवेलेंट टू दिस वैल्यू, ये दोनों इक्वल होंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट आवर एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्मेट।
नाउ इधर हमने टर्मिनोलॉजी यूज की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, interest on capital and salaries of partners. Now we will discuss कि what are these terminologies. सबसे पहले हमने बात की थी interest on drawing. अब जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं तो माय क्वेश्चन इज, या बहुत सारे स्टूडेंट्स के ध्यान में ये बात आता है कि यार प्रॉफिट जब इनका अपना है तो ये इतनी कहानी करने की क्या जरूरत है, भाई सीधा सीधा जो भी प्रॉफिट था वो इक्वली शेयर कर लेते, तो वाई दे नीड टू एड द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और डिडक्ट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये क्या चीज है, वाई व्हाट इज दिस बेसिकली। देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज यूजुअली included to discourage withdrawal by partners। ठीक है, नाउ अगर हम इधर दोबारा देखें तो हम इसको यहां पे ऐड कर रहे हैं, वाई वी आर एडिंग दिस वैल्यू। देखिए, हमने अभी एक बात डिस्कस की थी कि वी आर मेकिंग अप्रोप्रिएशन अकाउंट विद द परस्पेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। तो बिजनेस का जो भी प्रॉफिट था, बिजनेस का हमारे पास जो भी प्रॉफिट हुआ था, लेट सपोज ये एक प्रॉफिट आया था, इसमें हम इन पार्टनर्स को एज अ पेनल्टी चार्ज करते हैं और इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली इट बिकम्स द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। तो हमने पार्टनर से लिए पैसे पार्टनर के पास से डिडक्ट किए और बिजनेस में ऐड कर दिए। दिस इज बेसिकली अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज, दैट्स व्हाई इज सेड टू बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ बिजनेस। तो ये ऐड हो गया इसमें। सिमिलरली जब हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो दिस वैल्यू इज बेसिकली टू encourage more investment। तो बेसिकली हम इसको अगेन अगर यहाँ पे देखें, एज वी हैव डिस्कस, कि हम यहाँ से इसको माइनस करते हैं और हम बिजनेस में से इसको निकालकर पार्टनर्स को देते हैं। अगेन थर्ड वन इज द सैलरीज टू पार्टनर्स are not treated as an expense। This is not an expense, this is basically the partners share। पार्टनर्स को हम प्रॉफिट दे रहे हैं, तो पार्टनर्स को सॉरी सैलरीज दे रहे हैं, तो हम इसको एक्सपेंस ट्रीट नहीं करते। दैट्स वाई इसको हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लेकर जाते हैं। और जो पार्टनर वर्किंग पार्टनर होता है, इट मे बी पॉसिबल कि हमारे पास दो पार्टनर्स हों, एक पार्टनर्स वर्किंग हो, एक पार्टनर वर्किंग नॉट नॉट वर्किंग पार्टनर हो, या वो वर्किंग ना कर रहा हो। तो जो पार्टनर वर्किंग कर रहा होगा उसको मार्केट कॉम्पिटिटिव सैलरी मिल रही है यहाँ पे। ठीक है, then we arrive at the residual profit। ठीक है, और ये जो रेसिडुअल प्रॉफिट है ये बेसिकली क्या चीज है, इट इज द लेफ्ट ओवर प्रॉफिट। ठीक है, दैट लेफ्ट ओवर प्रॉफिट इज टू बी शेयर्ड बिटवीन या अमंग पार्टनर्स। ठीक है, माइट बी पॉसिबल कि रेसिडुअल प्रॉफिट की जगह यहां पे रेसिडुअल लॉस आ रहा हो, तो लॉस के साथ भी हम वही ट्रीटमेंट करेंगे जो हम प्रॉफिट के साथ करेंगे। इट विल बी
डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, समटाइम्स लिखा होता है यहाँ पे क्वेश्चन में कि प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इन अ परसेंटेज या रेशियो ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड। अब यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। व्हाट वी विल डू, हम लिखेंगे इज शेयर, क्या करेंगे, कैपिटल ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा। तो हम इसको इस तरह से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक जो हम बात कर रहे थे, वी वर टॉकिंग अबाउट द एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ अब हमें क्या देखना है कि हमने स्टार्ट में बात की थी डिफरेंस बिटवीन सोल ट्रेडर एंड पार्टनरशिप अकाउंटिंग। तो इन दिस डिस्कशन हमने ये देखा था कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट वाज द सेम टिल प्रॉफिट फॉर द ईयर, बट इन पार्टनरशिप हमने क्या किया था, एक न्यू एडिशन की थी जो कि हमारी सोल ट्रेडर में नहीं थी। हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट किया था, और अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का कोई रीजन है। वो रीजन ये है कि सोल ट्रेडर में ऑल द प्रॉफिट बिलोंग्स टू अ सिंगल ओनर, but here there are more than one people as a working as a owner। अब हमारे पास एक से ज्यादा लोग हैं, मे बी टू, मे बी मोर देन टू। तो जितने भी ज्यादा लोग होंगे उनके दरमियान हमें प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा। दिस इज द बेसिक फॉर्मेट। ये हमने देख लिया। इसमें जो टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही थी हमने वो देख ली। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, that is statement of financial position, also known as SOFP। Now what is the difference between SOFP of a sole trader and SOFP of a partnership? जब हम बात करते हैं सोल ट्रेडर की SOFP की, तो व्हाट वी डू, हम नॉन करंट एसेट लिखते हैं। इस नॉन करंट एसेट में हम करंट एसेट्स को ऐड करके टोटल एसेट्स निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कैपिटल एंड लायबिलिटी सेक्शन में आते हैं। यहां पे हम कैपिटल एट स्टार्ट लिखते हैं, उसमें ऐड करते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर जो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से निकाली होती है, और इसमें से डिडक्ट करते हैं ड्राइंग। अगर सोल ट्रेडर में ओनर ने ड्राइंग की है वो ड्राइंग लेस करते हैं, एंड वी अराइव टूवर्ड्स कैपिटल एट एंड। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इसके अंदर नॉन करंट लायबिलिटीज और करंट लायबिलिटीज को ऐड करते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ये पोर्शन होता है दैट मस्ट बी इक्वल टू टोटल एसेट। यहां पे जो हमारे पास वैल्यू आती है
और इनसे जो वैल्यू आती है दैट मस्ट बी इक्वल. इफ इट इज इक्वल, आवर statement of financial position of sole trader is complete. But when we talk about the partnership, SOFP of partnership. तो what happened here? हमारा अगेन टोटल एसेट्स तक जो हमने सोल ट्रेडर में निकाला था नॉन करंट और करंट एसेट को ऐड करके रिमेन्स द सेम. यहां तक हमारी स्टोरी सेम रहती है, बट चेंजेस स्टार्टेड एट कैपिटल एंड liabilities. Now, capital and liabilities में क्या changes आती है? Here, the biggest difference between capital structure of a sole trader and capital structure of a partnership, ये हमें समझना पड़ेगा. In the capital structure of a partnership, there are two types of capital. इसको हम थोड़ी देर के लिए यहाँ छोड़ेंगे. अब इसके कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ चले जाते हैं. कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ पार्टनरशिप. इधर हम कैपिटल को ब्रेक डाउन करते हैं टू डिस्टिंक्टिव पार्ट्स में. एक पार्ट हम कंसीडर करते हैं फिक्स्ड और एक को हम बोलते हैं जो मूवमेंट होती है जिसमें. ऐसा करने की जरूरत क्यों पेश आई? लेट अस सपोज दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी. इन दोनों पार्टनर्स ने स्टार्ट ऑफ द ईयर में इन्वेस्टमेंट की. सपोज जनवरी से दिसंबर ईयर है तो both of them invested 500,000 by the two partners or it becomes 100,000. ठीक है. जब फेब का महीना आया, फरवरी के महीने में पार्टनर ए विथड्रॉ 200,000. तो अब पार्टनरशिप में क्या हो गया? पार्टनरशिप में ए की इन्वेस्टमेंट हो गई 3 लाख और बी की इन्वेस्टमेंट हो गई 5 लाख. यानी क्या हुआ कि पार्टनरशिप का इक्वल शेयरिंग थी इनकी बिकॉज बोथ देयर कैपिटल्स आर इक्वल. तो अब ये इक्वल शेयरिंग नहीं रही. बट वेट, व्हाट डिड ए डू? ए बहुत ज्यादा सियाना था. उसने क्या किया? उसने नवंबर के महीने में ए ने दोबारा 2 लाख री इन्वेस्ट करके 3 लाख को दोबारा 5 लाख बना दिया और बी के तो थे ही 5 लाख. नाउ देयर विल बी अ ग्रेट डिस्प्यूट. ए कहेगा कि भाई इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए जबकि बी कहेगा नो देयर विल नॉट बी अ इक्वल शेयरिंग बिकॉज आपने अपने जो 2 लाख रुपए विड्रॉ किए थे वो फरवरी में कर लिए थे और नवंबर में या दिसंबर में आपने दोबारा उसको री इन्वेस्ट किया है तो आपके पैसे बिजनेस में यूज नहीं हुए थे. तो देयर माइट बी अ बिट डिस्प्यूट. काम स्टार्ट होने से पहले ही खत्म हो जाएगा. सो टू अवॉइड दिस हमने क्या किया? पार्टनरशिप के अंदर एक अकाउंट फिक्स कर दिया जिसके अंदर क्या आएगी? जो भी इन्वेस्टमेंट हुई थी वो यहां आ जाएगी और अगर फ्यूचर में कोई फर्दर इन्वेस्टमेंट हुई तो वो यहां आ जाएगी. दैट्स इट. नथिंग कम्स हियर और नथिंग गोज आउट. अगर यहां से आपने कोई भी कैपिटल को विड्रॉ किया तो पार्टनरशिप ऑब्वियसली एंड हो जाएगी. ठीक है. ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्टनर जो हैं डिसाइड करेंगे यार हम लोग हमारा बिजनेस में बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो रहे हैं वो हम क्या कहते हैं अपने 1-1 लाख रुपए निकाल लेते हैं. ऐसा भी हो सकता है.
भाई कुछ भी हो सकता है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी और इनिशियली स्टार्ट किया था कि यार हम जो हैं, लेट सपोज इनिशियली बहुत बड़ी अमाउंट इन्वेस्टमेंट की हुई थी और एट द एंड ऑफ द ईयर इन्होंने डिसाइड किया कि यार चलो 2-2 लाख रुपए हम क्या करते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो वो यहाँ से हम निकाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ इस अकाउंट को हम यूज नहीं कर सकते। सो नेम ऑफ दिस अकाउंट इज, इसको हमने कैपिटल अकाउंट ही रहने दिया नाम, और इस अकाउंट का नाम हमने रख दिया करंट अकाउंट। अब इसको हमने मूवमेंट अकाउंट कहा है, यानी ये ऐड भी होता रहेगा और ये लेस भी होता रहेगा। क्रेडिट में ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, डेबिट में डिक्रीज होगा। कैपिटल का हमें पता है कि जब भी हम कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल का नेचर क्या है, इट डिक्रीजेज ऑन द डेबिट साइड एंड इंक्रीजेज ऑन द डिक्रीज ऑन द डेबिट साइड, और अरे यार, और इंक्रीजेज ऑन द क्रेडिट साइड। सो ये अकाउंट भी क्रेडिट में बढ़ेगा, डेबिट में कम होगा, और ये अकाउंट भी डेबिट में कम होगा और क्रेडिट में बढ़ेगा। तो करंट अकाउंट के अंदर जितनी भी ड्राइंग है, सारी चीजें हैं, वो कहाँ जाएंगी, मूवमेंट अकाउंट में, जिसको हमने करंट अकाउंट का नाम। सो कमिंग बैक टू आवर एसओएफपी ऑफ पार्टनरशिप, हमने ये कहा था कि टोटल एसेट रिमेन्स द सेम। सो व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटल स्ट्रक्चर, तो यहां पे आ गया एक कैपिटल अकाउंट, एज कैपिटल लिख दिया हमने, और जो 20 का कैपिटल था वो लिख दिया हमने, और दूसरा आ गया करंट अकाउंट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, एज करंट अकाउंट और 20 करंट अकाउंट। नाउ अगर ये क्रेडिट है या पॉजिटिव वैल्यू लिखी है तो इट इज कंसिडर टू बी अ क्रेडिट बैलेंस, बट अगर यहां पे ब्रैकेट में वैल्यू है या डेबिट लिखा हुआ है तो इसका मतलब है इनका करंट अकाउंट इज हैविंग अ नेगेटिव बैलेंस। ठीक है, व्हाट डज दिस मीन्स, ये नेगेटिव बैलेंस कैसा है, ये कैसे पॉसिबल है कि कैपिटल में नेगेटिव बैलेंस हो। लेट अस अंडरस्टैंड दिस व्हेन वी आर मेकिंग अ करंट अकाउंट टी अकाउंट। ठीक है, तो अभी इसको यहां मैं इसको क्लेरिफाई करता हूं, उसके बाद फिर हमारे पास अगेन नॉन करंट liabilities सेम एज दैट ऑफ एसओएफपी ऑफ सोल ट्रेडर, और फिर हमारे पास आ गई करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब हम जरा फॉर्मेट्स देख लेते हैं। अच्छा, हम पहले टी अकाउंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट देख लेते हैं। ये बहुत रेयरली आता है, बट बिकॉज इसमें मूवमेंट नहीं हो रही होती, फिक्स इन नेचर होता है, तो इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, और इन ए एस partnership accounts is absolutely similar to the O levels partnership accounts। तो यहाँ पे हम सिंपल कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, और ये दो लाइन बनाने का मकसद ये है कि दिस इज द बैलेंस ऑफ ए, दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज बी। हम ये नहीं करते दो सेपरेट कैपिटल अकाउंट अलग दिखाते हैं, हम इस तरह भी दिखाते हैं। ठीक है, लेट सपोज बैलेंस ब्रॉट डाउन दोनों का आ गया। ठीक है, इफ मोर इन्वेस्टमेंट है वो यहां आ गई। अच्छा, इन्वेस्टमेंट का वर्ड मैं काट रहा हूं, लेट सपोज इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ कैश हो सकती है, बैंक हो सकती है,
और लेट सपोज मोटर व्हीकल, ठीक है। लेट सपोज इन्होंने कैश इन्वेस्टमेंट की और चेक इन्वेस्टमेंट की, इन्होंने मोटर व्हीकल की इन्वेस्टमेंट की, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट मस्ट बी इक्वल और प्लान बाय द पार्टनर्स, ठीक है। तो इन्होंने प्लान कर लिया कि हम एक बी ने प्लान किया कि आई आई हैव अ मोटर व्हीकल विद मी, तो मैं मोटर व्हीकल को इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और ए ने कहा मेरे पास कैश और बैंक पड़ा हुआ है, मैं वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो वो इन्वेस्टमेंट हो गई। यहाँ पे ये अकाउंट हमारा अगेन क्लोज हो गया और यहाँ पे हमारे पास आखिर में बैलेंस कैरेट डाउन आ गया और बैलेंस ब्रॉट डाउन। इंपॉर्टेंट थिंग, कैपिटल अकाउंट कैन नॉट हैव नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। और बैलेंस carried down on credit side and balance brought down on debit side, ऐसा not possible, ठीक है। यानी ये बैलेंस इधर नहीं होगा, ये बैलेंस इधर नहीं होगा कभी। तो कैपिटल अकाउंट इज अ सिंपल अकाउंट। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स करंट अकाउंट। अगेन examiner could ask us to create a current account of a single partner or create a current account of both the partners. अगर वो both the partners बोल रहा है तो we will create it like that. ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमारे पास दो पार्टनर्स थे ए एंड बी, करंट अकाउंट, ठीक है। व्हाट आई हैव टोल्ड यू पीपल, this is the possibility कि balance brought down of A is written on the debit side, credit side, and balance carried debit brought down, sorry, is written on the B का written on the debit side. अब ये possibility कैसे है? हमने कहा था मूवमेंट अकाउंट है। सपोज लास्ट ईयर जो बी के पास इन्वेस्टमेंट और ऑल द थिंग्स जो भी उसके पास आई थी वो 20,000 आई थी, बट ही नीड्स 30,000, तो इसने 10,000 ज्यादा ले लिया बिजनेस से, तो बिजनेस ने इसको दे दिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है? दैट वे इट शो द नेगेटिव बैलेंस। नाउ इफ वी मूव टुवर्ड्स द एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अच्छा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बिजनेस के परस्पेक्टिव से बना था और करंट अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द पार्टनर्स परस्पेक्टिव, ए और बी। तो क्या चीज मेरे करंट अकाउंट को बढ़ाएगी? इट विल इंक्रीज ऑन द क्रेडिट साइड, डिक्रीजेज ऑन द डेबिट साइड। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, it will be on the credit side. If there is any salaries, it will be on the credit side. One most important thing, इसको मैं बिल्कुल ही अलग कलर से लिख रहा हूं, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये क्या चीज है भाई? इसको मैंने बिल्कुल अलग से मेंशन कर दिया है। पहले हम फॉर्मेट बना लेते हैं, देन वी विल डिस्कस ये क्या चीज है। सपोज ए ने
लोन दिया हुआ था। ठीक है, तो हमारी ये चीजें आ गई। और आखिर में शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो इधर आ गई। नाउ हमारे करंट अकाउंट को क्या चीज कम कर रही होगी? इफ पार्टनर्स हैज डन ड्राइंग, तो ड्राइंग यहां आ जाएगी। अगर ड्राइंग है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी होगी, वो इधर आ जाएगी। ठीक है, दोनों पार्टनर्स की। और प्रॉफिट की जगह अगर लॉस हुआ हुआ है तो शेयर ऑफ लॉस यहां आ जाएगा। जब हम इसको क्लोज करेंगे तो वी विल फॉलो द रूल ऑफ टी अकाउंट्स ड्यूरिंग द क्लोजिंग। व्हाट वाज दैट? कि हम हैवी साइड देखेंगे। सपोज ए का हैवी बैलेंस, ये हैवी बैलेंस है, तो मैं यहाँ वैल्यूज लिख रहा हूँ। लेट सपोज ये 2 लाख आई, तो 2 लाख हमने यहां भी लिख दिया। ठीक है, ये 2 लाख आया था बैलेंस। ठीक है, आफ्टर दैट बैलेंस कैरेट डाउन हम इसका यहां लिखेंगे और बैलेंस ब्रॉट डाउन इसका यहां लिख देंगे। सिंपल, इजी पीजी। ठीक है, बट बी का चूंकि बैलेंस हमारा नेगेटिव था, इट माइट बी पॉसिबल कि दोबारा नेगेटिव हो जाए और इट माइट बी पॉसिबल पॉजिटिव हो जाए। हमने बी का जब बैलेंस देखा तो बी का बैलेंस जो है, लेट सपोज 150 आ रहा था, दोनों तरफ हमने 150 लिख दिया। और इसका बैलेंस कैरेट डाउन इधर आ रहा था, तो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन इस साइड पे आ जाएगा। व्हाट डज दिस सजेस्ट? दिस सजेस्ट कि इसकी क्रेडिट साइड इज मोर हैवी देन its debit side is heavier than the credit side. ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर ब्रॉड डाउन डेबिट साइड पे है तो कैरेट डाउन नेगेटिव ही आएगा, माइट बी चांस कि वो पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल फॉर्मेट ऑफ अ करंट अकाउंट। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो व्हेन वी विल बी डूइंग अ क्वेश्चन तो ये कॉन्सेप्ट और मजीद क्लियर हो जाएगा। नाउ मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन को मार्क किया था इधर। दिस इज बेसिकली इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, it is an expense for the पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप को लोन चाहिए था, सो दे वर अप्लाइंग फॉर द लोन फ्रॉम बैंक और एनी अदर थर्ड पार्टी। तो जो पार्टनर था, एक पार्टनर ने कहा कि आई कैन प्रोवाइड द लोन। जो इंटरेस्ट है, इंस्टेड ऑफ गिविंग टू अदर पीपल आप इंटरेस्ट मुझे दो। तो लेट सपोज 5% वॉज द इंटरेस्ट, तो क्या हो गया? फॉर पार्टनरशिप ये एक्सपेंस है। जब हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे तो ये हम एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर लेंगे। अनलाइक अदर, जैसे हम सोल ट्रेडर में लोन लेते थे तो हम एक्सपेंस लिखते थे, बट ये पार्टनर के लिए इनकम है।
और जब ये पार्टनर के लिए इनकम है तो इसका करंट अकाउंट विच इज अ टाइप ऑफ कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो इट विल इंक्रीजेज ऑन द क्रेडिट साइड, तो इसको हम यहां पे रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसको इसकी जर्नल एंट्री देखें तो हम क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस हम डेबिट कर देंगे और जो भी पार्टनर होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो ये पार्टनर्स को मिल गया एज अ इनकम। क्लियर हो गई बात। नाउ ये जो हमने बात की है, यहाँ पे हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, विच इज पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नाउ पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है? पार्टनरशिप एग्रीमेंट is a written agreement that clearly mentions all terms and conditions। ठीक है, it also contain rights and responsibility of every partner। ठीक है, अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट टिपिकली उसमें क्या क्या चीज होती है? नेम ऑफ पार्टनर्स, कौन कौन पार्टनर्स हैं। दूसरी इसमें होती है कैपिटल contributed बाय पार्टनर, कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है। थर्ड, प्रॉफिट शेयरिंग और लॉस शेयरिंग रेशियो। क्या चीज आती है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, कितना इंटरेस्ट पार्टनर की इन्वेस्टमेंट में मिलेगा, कैपिटल मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। सही है। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने अगर बिजनेस को लोन दिया तो क्या मिलेगा उसको? सैलरीज ऑफ वर्किंग पार्टनर, जो भी पार्टनर वर्किंग में होगा उसको क्या सैलरी मिलेगी। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर। ठीक है, और इसमें और भी तरीकेकार होते हैं, जैसे अगर कोई नया पार्टनर एडमिशन हुई तो क्या होगा,
पार्टनरशिप डिसोल्यूशन के बाद कोई पार्टनर रिटायर होगा तो क्या होगा, ईच एंड एवरीथिंग. So this is not our case in AS, so that's why we are not discussing all these things. What if there is no partnership agreement? अगर कोई दो सोल ट्रेडर थे, उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म कर लिया और उनके दरमियान कोई एग्रीमेंट अभी तय नहीं हुआ, तो व्हाट दे विल डू, दे विल फॉलो पार्टनरशिप एक्ट 1890. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स कमिट दिस मिस्टेक व्हेन देयर इज नो पार्टनरशिप. ऊपर आपने क्वेश्चन में देखा, उन्होंने आपको बहुत क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है. तो व्हाट वी विल डू, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग. ठीक है, कोई किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ना डिडक्शन होगी ना मिलेगा. प्रॉफिट लॉस शेयरिंग इक्वल शेयरिंग होगी, चाहे जितने भी पार्टनर्स हों. ठीक है. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर would always be 5%. याद रखना. ठीक है. नो salaries, partner is active, partner is working, whatever. So अगर एग्रीमेंट नहीं है, पार्टनर विल नॉट रिसीव अ सैलरी, पार्टनर इज नॉट अलाउड टू रिसीव अ सैलरी. ठीक है. तो अगर हम दोबारा टॉपिक पे आए, जो हमने सिलेबस कंटेंट लिखा था उसको हम एक नज़र देख लें. इज देयर एनी थियोरेटिकल पार्ट जो हमने मिस किया हो, इसको एक दफ़ा हम हटाते हैं. यहाँ देखते हैं, हाउ अ पार्टनरशिप, हाउ टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर अ पार्टनरशिप. अभी हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, अकाउंटिंग रिकॉर्ड की बात नहीं करनी, हम बेसिक पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं. दिस में बी अ ट्रेडिंग और अ सर्विस बिजनेस, ये हमने देख लिया. अभी हमने ट्रेडिंग का देखा है. अगर ये सर्विस बिजनेस होता तो इंस्टेड ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये हम बात करें अगर इधर, तो हमारा ये पोर्शन क्या होता, ये पोर्शन हट जाता. ठीक है. तो हमारे पास क्या होता, सेल्स की जगह जो भी हमारी फी रेवेन्यू वट एवर सर्विस रेवेन्यू होता वो आता, उसमें हम अदर इनकम होती वो ऐड करते और लेस एक्सपेंसेस कर देते, और प्रॉफिट फॉर द ईयर की जगह इनकम फॉर द ईयर वर्ड आ जाता. ठीक है. फिर हम बात करें वाई पार्टनर्स में मेंटेन सेपरेट कैपिटल एंड करंट अकाउंट, ये हमने डिस्कस कर लिया कि टू टाइप्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर हैं. कैपिटल को हमने एक फिक्स कहा, एक हमने मूवमेंट कहा. फिक्स इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल अकाउंट और मूवमेंट इज नोन एज करंट अकाउंट. इंडिविजुअल बनाना है तो इंडिविजुअल भी कुछ जस्ट लाइक अ टी अकाउंट जो नॉर्मल बनता है वो बन जाएगा, और अगर दोनों को एक साथ बनाना है तो हम दोनों को एक साथ बना लेंगे. हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर करंट एंड कैपिटल अकाउंट, ये हमने डिस्कस कर लिया. कंटेंट ऑफ अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हमारे लिए अभी यूजफुल हैं अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हमने देख लिया. एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंटेनिंग अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगेन दिस इज अ थ्योरेटिकल पार्ट. इसको भी अगर हम देखना चाहें तो व्हाट विल बी द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसको चलो हम देख लेते हैं जल्दी से. ये पार्ट हमारा रह गया है. And provision for the Partnership Act 1890 in respect of partner salaries, there will be no salary. Division of profit and loss, equal sharing होगी.
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 5% होगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. ये हमने डिस्कस कर लिया. हमारा लास्ट टॉपिक जो रह गया है, विच इज अ वेरी theoretical पार्ट, वो हम देख लेते हैं, विच इज advantages of partnership agreement. जब हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करते हैं, नंबर वन, इट प्रोवाइड्स written evidence of the agreed terms. नंबर टू, और क्या हो सकता है? Makes it clear about interest on capital, interest on drawing, salaries, profit loss sharing, and interest on loan by partner. So there will be no dispute. It has been clearly clearly mentioned in the agreement about every important aspect. Helps an accountant to prepare appropriation account correctly. Helps to resolve any disputes. ठीक है. Now मतलब डिसएडवांटेजेस तो एज सच है नहीं, लेकिन दिस इज अ theoretical part. Sometimes they ask what are the disadvantages. Okay. Detailed agreement consumes a lot of time. Time consuming होता है obviously. Secondly, may be costly, क्योंकि हम खुद से तो नहीं बना रहे होंगे, प्रोफेशनल कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, और नॉट ओनली टाइम रिक्वायर होगा, कॉस्टली भी होगा. सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, एन एग्रीमेंट may need to be updated when certain circumstances changes. ठीक है. आप कोई सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपने जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लो रखा हुआ था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हाई रखा हुआ था, बिकॉज देयर इज अ रिसेशन
or you need to discourage drawing and you need to encourage more investment. ठीक है? और हम कह सकते हैं may create disagreement while negotiating terms. ठीक है? मतलब ये मैंने ज़बरदस्ती का बना दिया क्योंकि चार चार हैं तो भाई जहन में होने चाहिए। ठीक है? पार्टनरशिप एक्ट भी देख लिया हमने। उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि दिस इज द ओनली थियोरेटिकल पार्ट ऑफ द वीडियो। इंशाल्लाह वी विल क्रिएट and we will solve certain questions so that our concepts about creation, about the preparation of appropriation account, preparation of control account, sorry, control account में पहुंच गया, preparation of current account or preparation of capital account must be cleared. जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे इट विल नॉट मेक थिंग्स क्लियर टू एवरीवन. ठीक है? आई थिंक all of you have now understand the theoretical aspect and everything about the partnership, which is very important to understand. ठीक है? This video is not for only AS level. This video will serve as an important theoretical part for O levels student as well. So inshallah we will meet in next video where we'll be solving the questions, and I hope you have liked this video. If you understand the concept, please subscribe to my channel, like the video and share the video. Thank you.